हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे एट्रीब्यूशन मॉडल्स। सो टिल नाउ वी हैव जस्ट गॉन थ्रू मैनी ऑफ द वेरियस स्टेप्स वेयर कंज्यूमर डिसीजन जर्नी आर देयर फ्रॉम द कंपनी एंड कि यहाँ पे आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपके प्रोडक्ट है, आपके सर्विसेज है, राइट। सो ऑल दे आर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड नाउ customer and consumer both are able to access this product and services through the any of the platform, right? तो यहाँ पे अब consumer decision journey में how they will basically reach to the actual platform, right? So यहाँ बहुत सारे वे हो सकते हैं. They can directly come to our website, they can learn this thing via someone, they can just check it on, let's say, Facebook, they can check the ads, they can check through the Google, right? So there are lots of way where the customer and consumer can reach up to the actual website, right? Website भी आपकी बहुत तरीके से manage हो सकती है. It can be managed through the paid medium, it can be managed through the own medium, right? So यहाँ बहुत सारे steps हैं. Now we need to understand the attribution model कि जहाँ पे how the model will help us to understand the consumer journey as well as from the business perspective, right? So attribution modeling hai, that is nothing but it's the process of assigning the credit to various marketing channels or touch points, we can say, that we have contributed from the company end and how the conversation is happening from the user end, right? आसान भाषा में इसको बोलेंगे, सो वी कैन से दैट कि सिंपल कंज्यूमर हमारा जो है, सो कंज्यूमर एक उसकी डिसीजन जर्नी होती है, उसकी नीड्स होती है, उसके वांट्स होते हैं. डिपेंडिंग ऑन दैट दे विल बी सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज. So they can come to the actual website through any of the mediums, through channels. They can come via phones, they can come via the laptop, right? They can come via Google search engine, they can come via YouTube, right? So lots of points are there. So यहाँ पे attribution model में हमें कौन से points से वो होके यहाँ आपके actual website तक आया है, right? So this attribution model will help us to understand this basics, right? So attribution model in the digital marketing is helping the business, right? Where there will be lots of touch points, और ये touch points क्या होंगे? That is basically contributing to the फाइनल कन्वर्जन. जो भी आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो प्रोडक्ट और सर्विस को अवेल करेंगे और उसके बाद बेसिकली एक आपकी परचेस डिसीजन जर्नी होगी, राइट? और बेस्ड ऑन दैट ROI विल बी ऑल्सो जनरेटेड. सो एट्रीब्यूशन मॉडल विल हेल्प अस टू गेट दिस डेटा एंड उसके बेस पे हम यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, राइट? विल सी व्हाट काइंड ऑफ मॉडल्स आर देयर. सो कस्टमर की जर्नी है, जैसे हमने बोला कि यहाँ मल्टी चैनल, मल्टी डिवाइसेस ऑफ अ नॉन लीनियर वे में बहुत तरीके से यहाँ पे हो सकती है. सो बेसिकली वी हैव टू सी कि कंज्यूमर जर्नी में, कस्टमर जर्नी में यहाँ पे कौन कौन से ऐसे टच पॉइंट है और कौन कौन सी जगह पे वो हैवीली इम्पैक्ट कर रहे हैं. सो इफ वी ब्रॉडली डिस्कस, so technically we are having a two category of attribution model. One that is a single touch attribution model where first touch attribution and last touch attribution is there. दूसरा देखेंगे, so that is multi touch attribution model कि जहाँ पे linear attribution model है, time decay attribution model है and position based that is U shape attribution, right? So इसको step by step हम live example के साथ समझेंगे कि what is exactly happening, right? So these are the consumer of different age, different genders, right? So they can have a different kind of mode of consumer journey कि जहाँ पे वो स्टोर में जाके भी कर सकते हैं. they can just check it out on the internet, right? Lots of options are there. They can come to the internet, they can check the website and they can again go to the physical stores, right? So यहाँ पे बहुत सारे वे में यहाँ पे आपका एक पूरा डिसीजन जर्नी होगा जहाँ से उसकी परचेस होगी. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट्स कि किस किस हिसाब से यहाँ पे वो लोग बिहेव कर रहे हैं. सो फर्स्ट दैट इज अ सिंगल टच एट्रीब्यूशन मॉडल. सो ये मॉडल में क्या है बेसिकली, सो 100% ऑफ द क्रेडिट विल बी असाइन टू
one touch point, right? We'll understand in the example how it's happening. So in the first touch attribution, of course, the first interaction that user is making to reach to your platform, right? Whether it can be a YouTube, it can be a Google, it can be directly to our website, right? So first interaction जो आपका है, it can be through the email marketing, it can be through the message, it can be through any of the ads running on any of the platform. They can come via Instagram, they can come via LinkedIn, right? So जो भी first interaction step आपका है जहां से यूजर आ रहा है, so they will be considered as a first touch attribution model, right? So it is best for awareness campaigns, but technically it will ignore the later interaction, right? मतलब क्या कि जैसे फर्स्ट टच पे ही लेट्स से देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द जर्नी, और यहाँ पे वो फर्स्ट इंटरेक्शन के थ्रू किस हिसाब से यहाँ पे पहुंचा है, सो दिस मॉडल विल ओनली कलेक्ट दैट डेटा. सेकेंड, दैट इज अ लार्ज टच एट्रीब्यूशन मॉडल. सो लास्ट टच में क्या होगा कि जो आपका फाइनल टच पॉइंट है बिफोर द एक्चुअल कन्वर्जेशन, राइट? सो दैट विल बी कंसिडर इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, and it is helpful for direct response marketing, but technically that will ignore the earlier influences. मतलब इनिशियल स्टेजेस पे वो जर्नी करके आपके यहाँ पे पहुंचा है, सो वो सारे स्टेप्स यहाँ पे इग्नोर होंगे. दे विल ओनली फोकस ऑन व्हाट इज द प्रायर स्टेप टू द फाइनल कन्वर्जन रेट, राइट? सो विल अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल, उसका थोड़ा आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा. सेकेंड, दैट इज अ मल्टी टच एट्रीब्यूशन मॉडल, कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रेडिट आपका जो है, सो दैट इज हैपनिंग एट द मल्टीपल टच पॉइंट्स, राइट? सो जितने भी कंज्यूमर डिसीजन जर्नी में पोस्ट कन्वर्जेशन यहाँ पे जो भी पॉइंट्स से वो यहाँ पे आ रहा है, सो अगेन इट इज हैविंग अ थ्री काइंड ऑफ कैटेगरी where the credit will be distributed. First, that is a linear attribution. Second, that is the time decay attribution. And third, that is position based attribution. So linear attribution में क्या होगा? So technically that will give equal credits to all touch points, right, in the customer journey. Time decay attribution में क्या होगा? So again it assigns a more credit to the touch points closer to conversion. और position based में यहाँ पे क्या होगा? So typically it assigns 40% credit to the first and last touch point, और बाकी के remaining जो है that is 20% across the middle interaction. राइट? सो ये सारे आपके बहुत सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट में मॉडल है, बट विल जस्ट अंडरस्टैंड हाउ दैट इज हैपनिंग, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि देयर इज वन कस्टमर नेम एलेक्स. सो व्हाट ही हैज डन, ही हैज जस्ट मेड अ डिसीजन कि यहाँ पे उसको परचेस करना है. सो व्हाट विल हैपन, लेट्स कंसिडर नाउ दिस एलेक्स हैज द फॉलोइंग जर्नी बिफोर मेकिंग द परचेस, राइट? ये जर्नी से यहाँ पे वो गुजर रहा है. लेट्स से ऑन दिस डेट्स, let's consider the first step, that is through the Google search ad. Let's say he want to buy something. So first उसका जो आपका touch point है, that is the Google search ad, that is through the paid channel, right? मतलब कोई कंपनी है उसने पेड मार्केटिंग करवा रखा है, एंड फर्स्ट फेब को वो एडवर्टाइज एलेक्स को यहाँ पे दिख रहा है. सो थ्रू द गूगल एड्स ही इज क्लिकिंग. नाउ सेकेंड, ऑन 3rd February, अगेन थ्रू द पेड सोशल मीडिया, यहाँ पे उसको इंस्टाग्राम के थ्रू यहाँ पे एड उसको दिखाई दे रहा है, राइट? सो टिल नाउ द परचेस हैज नॉट टेकन प्लेस. ऑन द 5th February, थ्रू द ईमेल मार्केटिंग, उनको क्या आ रहा है, एलेक्स को एक ईमेल कैंपेनिंग के थ्रू एक पर्सनल इनबॉक्स में ईमेल भी आ रहा है, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग ऑन 7th Feb? सो डायरेक्टली ही इज विजिटिंग द स्टोर, और फाइनली 8th Feb को यहाँ पे वो पूरा यहाँ पे परचेस कर रहा है, राइट? सो दिस इज अ कंज्यूमर जर्नी दैट एलेक्स हैज मेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st Feb, और आपका कन्वर्जन जो हो रहा है दैट इज ऑन द Feb 8, कि जहाँ पे उसको फाइनल परचेस हो रही है, ही इज पेइंग वॉट एवर ही इज बाइंग, राइट? और कंपनी के पास यहाँ पे उसका जो भी पेमेंट है वो पैसा आ रहा है, राइट? सो नाउ इन दिस
model, let's say if we divide into first touch and last touch model, so first touch जो आपका होगा, so that is giving all the credits to the first touch, right? So first touch that is on the first five, तो यहाँ पे गूगल सर्च एड के थ्रू यहाँ पे कस्टमर जो है वो परचेज की जर्नी कर रहा है. सो दैट इज वाई 100% क्रेडिट विल गो टू द गूगल सर्च एड इन द फर्स्ट टच एट्रीब्यूशन मॉडल. दूसरा जो आपका है दैट इज लास्ट टच एट्रीब्यूशन मॉडल, कि जहाँ पे लास्ट टच जो आपका है, सो दैट इज व्हेन द एलेक्स इज डायरेक्टली विजिटिंग टू द स्टोर और यहाँ से वो परचेज जर्नी कर रहे हैं. So in that case, the credit 100% will go to the last touch point, that is a direct visit, right? So this is a very good example to understand कि यहाँ किस हिसाब से चीज़ें हो रही है. So फर्स्ट टच में जैसे बोला कि ग्राफिकल अगर समझेंगे, so again 100% credit go to the Google search ad. बाकी के यहाँ पे of course touch points है, but in this model it is giving the 100% credit to only Google search ads. If company wants to adopt this model, so last touch attribution में again it is going through each and every steps, each and every touch points, but at the last वो आपका conversion rate हो रहा है, that is through the direct visit. So 100% credit will be given to the direct visit that is happening on a Feb 7, right? So आप इस हिसाब से यहाँ पे पूरा किसी को भी explain कर सकते हैं in the proper date with the data, how the channel is getting made, what are the touch points, उसके हिसाब से conversion rate क्या हो रहा है, और यहाँ पे दोनों मॉडल्स में क्रेडिट स्कोर किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड द सेम कंसेप्ट इन अनदर मॉडल्स कि किस हिसाब से यहाँ पे सेम चीज हैपन करेगी, राइट? सो लेट्स से अगेन दिस कस्टमर एलेक्स want to purchase via the store. So again he has made the consumer decision journey through the this much of the touch points. तो first वो क्या कर रहा है, लैपटॉप पे है, इंटरनेट पे है, ऑन द फर्स्ट वेब उनको एक गूगल सर्च एड के थ्रू यहाँ पे एड दिख रही है. सो दैट इज पेड सर्च वाय द कंपनी. सो लीनियर मॉडल में क्या होगा, सो 25% क्रेडिट विल बी गिवन टू द फर्स्ट वेब Google search ad touch point, right? In the time decay model, 10% will be given to the Google search ad. U-shape model, the 40% credit will be given to the Google search ad. On the third fab, what again is happening through the paid social campaigning marketing on the Instagram, he is visiting the Instagram and getting the ad of the same. तो Instagram की ad से वो देख रहा है. सो अगेन लीनियर मॉडल में 25% क्रेडिट स्कोर उसको मिल रहा है, टाइम डीके में 15%, यू शेप में 10%. On the fifth fab, through the email campaigning, what is happening again through the email marketing channel. In the linear model, 25% is given in the time decay, 20% is given. U-shape model, 10% is given. Now on the 7th Feb, he is visiting directly to the store, right? So channel आपका हो गया, that is direct, store पे जा रहा है. So in the linear model, 25% credit is given, time decay model 55% is given, and U-shape model 40% is given, right? So अब यहाँ पे अगर थोड़ा इस हिसाब से देखेंगे, so that will be much more easier. तो ये जो हमारे हो गए, that is the touch points. ये जो हमारा हो गया कि ये डेट पे ये सारी एक्टिविटीज हो रही है, ये मेरा जो है, सो दे आर द चैनल्स, राइट? थ्रू दिस काइंड ऑफ चैनल्स द कस्टमर इज रीचिंग अप टू द स्टोर, और फाइनली यहाँ पे जाके पेमेंट आपका हो रहा है, एंड कस्टमर इज हैविंग दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट ही हैज डिजायर्ड फॉर. अब यहाँ पे जो मेन चीज आ रही है टेक्निकल, सो दैट इज द लीनियर मॉडल. सो लीनियर मॉडल में क्या है, सो all of the touch point will get the equal credit score, right? So 25% for each of the touch points. टाइम डीके मॉडल में क्या हो रहा है, सो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, सो एट द लास्ट जो यहाँ पे टाइम डीके हो रहा है उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहा है. सो दैट इज
55% is given to the direct visit. Lowest 10% is given to the Google search ad, which is the first touch point. In the U-shaped model, the first touch point, that is the Google search ad, उसको मिल रहा है 40%. लास्ट टच पॉइंट है, उसको मिल रहा है 40%. द रिमेनिंग विल गेट वॉट एवर द रिमेनिंग इज, राइट. सो हर चीज में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि किस हिसाब से मॉडल वर्क कर रहा है, किस हिसाब से डेटा कलेक्शन हो रहा है, कितने टच पॉइंट्स है, किस हिसाब से क्रेडिट स्कोर जा रहा है. नाउ कंपनी कैन एडॉप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनारियोस. तो वो एज अ कंपनी यू हैव टू डिसाइड कि यहाँ पे आपको कौन से मॉडल में जाना है, राइट. सो यू हैव टू चूज द राइट मॉडल बेस्ड ऑन योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर एक बिजनेस स्ट्रैटेजी का गोल यहाँ पे अलग हो सकता है. लीड जनरेशन है, रेवेन्यूज है, मार्केटिंग है, राइट. दे वांट द न्यू कस्टमर्स ओनली, दे वांट टू प्रमोट सम प्रोडक्ट टू सम कस्टमर्स ओनली, राइट. सो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स और बिहेवियर में यहाँ पे आपका बिजनेस चलेगा. सो इफ यू वांट टू गो फॉर द शॉर्ट सेल साइकिल, सो आपके लिए आपका लास्ट टच और फर्स्ट टच में वर्क. इफ यू वांट द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स जर्नी, तो यहाँ पे आपका मल्टी टच और DDA इज बेटर, राइट. अगेन ये आपके मशीन लर्निंग के बेस पे यहाँ पे डेटा कलेक्शन होगा, और बेस्ड ऑन दैट क्रेडिट स्कोर विल बी गिवन एंड नीड इवन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन. सो आपका लीनियर मॉडल आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, राइट. सो ऐसा नहीं है कि कोई एक मॉडल अच्छा है, कोई एक मॉडल अच्छा नहीं है. सो बेस्ड ऑन द योर बिजनेस मॉडल, और आपको किस हिसाब से यहाँ पे गोल्स चेंज करना है, किस हिसाब से आपका ऑपरेशन चलेगा, कौन से गोल पे फोकस करके कौन सा मॉडल आपको यहाँ पे एडॉप्ट करना है, किस हिसाब से आपका डेटा कलेक्शन आ रहा है, राइट. सो देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू एनालाइज ऑल दिस थिंग एंड दैट्स इट, राइट. सो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा. जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट वन मोर टाइम, और यहाँ पे प्रैक्टिकली सोच के देखिए, सो दैट विल बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मॉडल्स, राइट. So thank you for listening and stay connected for